Hello everyone, welcome to the new video of government budget chapter. Now we were doing government budget in the previous videos. We have discussed about what is revenue receipts, what are revenue expenditure, what is capital receipts, what is capital expenditure. In the previous video only I have shared this account with you as well. Now today we will be moving forward from this account. Just recapitulating some things. Now when we were doing revenue account and capital account, we have done that if there is suppose करिए हमने लास्ट टाइम जो किया था वो ये था कि रेवेन्यू रिसीट्स हमारी अगर कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे. ठीक है, देयर थ्री ऑप्शंस इन बोथ द अकाउंट्स विच वी हैव. वन ऑप्शन, receipts are more, expenditure is less. Okay, now when we say receipts are more and expenditure is less, when receipts are more, expenditure is less, we have a surplus. It's very good for the economy. पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है हमारे पास, तो अच्छा हमारे सरप्लस में, रिजर्व्स में चला जाता है. अगर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल हैं तो भी ठीक है, बैलेंस्ड है. लेकिन प्रॉब्लम आती है अगर रिसीट्स हमारी कम है और एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है. ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा, रिसीट्स कम है, तो आता है डेफिसिट. हमें लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा है, द डेफिसिट इज ऑफ 3 टाइप्स. In the last class we studied deficit is of 3 types: revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. In today's video we are talking about the revenue deficit. Let us come back to revenue deficit. Now we all can see this is the revenue account which we have, which will only incorporate for the regular expenditure and the regular receipts of the government. Now let us suppose that in this account your revenue receipts, जो पैसा आ रहा है हमें regularly, that is 4 lakh rupees, और जो पैसा जा रहा है हमें regularly, that is 5 lakh rupees. So obviously revenue expenditure is more than revenue receipts. So the deficit, the difference between these two is called revenue deficit. Revenue deficit is the excess of revenue expenditure over revenue receipts. Revenue expenditure minus revenue receipts. In this case, 5 lakh minus 4 lakh, that is 1 lakh is your revenue deficit. Now what does this revenue deficit imply? Let us see what does it imply. Now if you see very clearly, revenue deficit implies that the government is unable to meet its regular expenditure. Now you see these are your regular expenditure. Subsidy हर बंदे को हर साल देनी है, सैलरी हर महीने सबको देनी है, हमने इंटरेस्ट पे करना ही करना है. एंड अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा एज कम्पेयर टू हमारी रिसीट, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज अनेबल टू provide for the regular expenditure. Government is unable to meet the regular expenditure needs. Coming to the second point, government is just saving. Now what does that mean? Obviously अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए का हमारे पास डेफिसिट आ रहा है, वो कहाँ से हम फाइनेंस करेंगे? कैपिटल अकाउंट से फाइनेंस करेंगे. कैपिटल अकाउंट में कहाँ से आ रहा है पैसा? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास जो पहले का पैसा बचा हुआ है, गवर्नमेंट वहीं से तो निकालेगी इसको फाइनेंस करने के लिए. अगर गवर्नमेंट पहले की सेविंग्स को निकाल रही है, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, विच इज़ नॉट वेरी गुड. Third point, government has to finance this form from the capital account and hence increasing the total expenditure. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर हम लोग यहाँ को इसको फाइनेंस करते हैं कैपिटल अकाउंट से, तो हमारा कैपिटल अकाउंट का तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफ कंसर्न. नाउ व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस your revenue deficit? So there are 2 options you can do. One, you can increase the revenue receipts और यू कैन रिड्यूस द एक्सपेंडिचर. या तो इसको बढ़ा दें रिसीट्स को, या इसको कम कर दें एक्सपेंडिचर को. अब जब बात आती है रिसीट्स को बढ़ाने की, तो ऑप्शन क्या है? तो हम डायरेक्ट टैक्स से तो टैक्स रिसीट्स बढ़ाएं या फिर नॉन टैक्स रिसीट्स बढ़ाएं. अब नॉन टैक्स रिसीट्स बढ़ाना इज़ नॉट ईजी. ठीक है, नॉन टैक्स रिसीट्स में चलान आता है, फ़ाइन आता है. क्या जाके तो नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हम तुम्हारा चालान जानबूझ के लगाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है. कहीं से इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, वो भी बढ़ाना बहुत मुश्किल है, हमें लोन देना पड़ेगा पहले उसके लिए. तो ऑब्वियसली burden falls on increasing either the direct tax or the indirect tax. तो once you increase the tax, तो होता क्या है? प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर सपोज़ करिए मेरे पास 1000 रुपये, ठीक है, मेरी सैलरी आती है 1000 रुपये, उसमें से मैंने 100 रुपये का टैक्स दे दिया, बचे 900 रुपये. 900 रुपये से मैं कंजम्पशन करूँगी, मतलब मेरी परचेजिंग पावर है 900 रुपीज़ की, मैं 900 रुपीज़ का सामान डिमांड करूँगी. ठीक है, अब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया. पहले 100 रुपये था, अब गवर्नमेंट ने 200 रुपये कर दिया. तो अब मेरे पास इनकम तो वही 1000 रुपये आ रही है. अब मेरे पास बचे कितने? 1000 माइनस 2000, दैट इज़ 800 रुपीज़. सिर्फ 800 रुपीज़ हो गई मेरी परचेजिंग पावर, जो लास्ट ईयर क्या थी? 900 थी. तो अब मैं कम डिमांड करूँगी. जब मैं कम डिमांड करती हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जब मैं कम डिमांड करती हूँ तो सामान कम प्रोड्यूस होगा. कम प्रोड्यूस होगा तो एम्प्लॉयमेंट फॉलो हो जाएगी. एम्प्लॉयमेंट फॉलो होगी तो सैलरीज कम मिलेंगी लोगों को, अगेन प्रॉब्लमेटिक. तो इसलिए ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम रिसीट्स नहीं बढ़ाने में बहुत इशू रहता है. कमिंग टू एक्सपेंडिचर, या तो रिड्यूस कर देते हैं एक्सपेंडिचर. अब क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं? वी कैन नॉट रिड्यूस द इंटरेस्ट पेमेंट, जो फिक्स्ड है. कमिंग टू सब्सिडीज़ एंड सैलरीज. नो एक्सपेंडिचर्स ऑफ 2 टाइप्स, यू मस्ट नो. ठीक है, कमिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 टाइप.
वन इज कॉल्ड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, द अदर इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जो कि हमारा होता है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वो होता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल होता है जैसे कि हमने किसी की सैलरी ज़बरदस्ती इंक्रीज़ कर दी, ठीक है, उस बंदे को हमने ज़बरदस्ती अलाउंसेस दे दिए, सब्सिडीज़ दे दी, ये होता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। द गवर्नमेंट हैज़ टू रिड्यूस दिस नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो दिस इज़ योर रेवेन्यू डेफिसिट। द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द फिस्कल डेफिसिट।